we have to understand the difference between bookkeeping and accountancy, right? ये अभी तक मैंने लिया नहीं है, डोंट वरी. Transactions. Types of transactions, right? Transaction is the base of accounting. Transaction is the base of accounting, right? Without transaction, there will be no accounts, ना. Transaction होने तो चाहिए. So, base of accounting. देखते हैं. Transactions are two types: monetary transactions and non-monetary transactions. Non-monetary transactions are barter transactions. In your textbook, they have written non-monetary transactions, barter transactions are not recorded. Actually, barter transactions are also recorded in the books of account. This is very fundamental. Cash transactions and credit transactions. Cash transactions, right? You purchase sale on cash basis. Credit transaction means you purchase sell the goods, but the amount, right, will be received in the future, or amount will be paid in the future. इसके वजह से receivables and payables बनते हैं. इसकी वजह से receivables and payables बनते हैं. Receivables means debtors, payable means creditor. Receivable means debtor, payable means creditor. ये दोनों किसकी वजह से बनते हैं? आपके राइट क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से बनते हैं. ठीक है, आई डोंट नो, थोड़ा लेट मी राइट इट प्रॉपरली. And payables. Then they have given us the definition of the transaction: monetary transactions, exchange of goods or services between two persons or parties for money or money's worth is transaction. For money or money's worth. Monetary transactions which involves money. The transaction which involves exchange of money or money's worth directly or indirectly is called as monetary transactions. Only monetary transactions are recorded in the books of accounts. Cash transactions, a business transaction in which cash is paid or received immediately, is known as cash transaction. Credit transaction, right? A credit transaction is the one in which cash is not paid or received immediately at the time of transaction, but it is received or paid at a later date. ठीक है, देखो कैश ट्रांजैक्शन में एग्जांपल क्या दिया है? परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश. यू परचेस गुड्स एंड यू पेड कैश. आप सप्लायर के पास गए, आपके सेलर के पास गए, उससे गुड्स लिए और कैश दे दी. पेमेंट ऑफ सैलरी, एम्प्लॉय ने काम किया, उसको सैलरी तुरंत दे दी. कैश ट्रांजैक्शन. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट तो मिस्टर अमन एट 8,000. अमर हमारे पास आया, अमर हमारा बायर है, हमने उसको गुड सेल किए 8,000 पे, और हमने उसके 8,000 वो बाद में देगा ऑन क्रेडिट. सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट ₹20,000. अमर सिंह को हमारे पास एक मशीनरी रहेगी स्पेयर में, एक आधी एक्स्ट्रा, या हमें कोई मशीनरी निकालनी होगी, हमने मशीनरी उसको सेल कर दी. एंड उससे जैसे हम हमारी व्हीकल सेल करते किसी को, वैसे हमने हमारी मशीनरी सेल कर दी. ठीक है, अमर सिंह को ऑन क्रेडिट ₹20,000. अमर एंड अमर सिंह से बाद में हमें 8,000 and 20,000 रिस्पेक्टिवली रिसीव करने पड़ेंगे. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर which does not involve money or money's worth. The transaction which does not involve exchange of money or money's worth direct or indirectly are non-monetary transactions. Monetary transactions which involves money or money's worth. Non-monetary transactions are transactions which do not involve money or money's worth. Does not involve exchange of money or money's worth directly or indirectly are called as non-monetary transactions.
एंड एक्सचेंज ऑफ वन थिंग फॉर अनदर थिंग इज कॉल्ड एज ए बार्टर ट्रांजैक्शन. ठीक है. सो आपके सिलेबस में नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में बार्टर ट्रांजैक्शन लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. एंट्री नरेशन अभी तक आई विल बी स्टार्टिंग विद द लाइक एंट्रीज. मैं एंट्री स्टार्ट करने वाला हूं, सो वहां पे एंट्री और नरेशन आ जाएगा. अभी वो बोलने से भी कोई फायदा नहीं. ठीक है. देन गुड्स, ये डेफिनेशन हमने की है. गुड्स आर द थिंग्स इन विच यू डू द बिजनेस. ऐसे मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखे थे. गुड्स आर द थिंग्स इन विच यू डू द बिजनेस. लाइक यहाँ पे क्या लिखा है? द टर्म गुड्स रेफर्स टू मर्केंडाइज, commodities, articles or things in which trader trades. जिसमें वो बिजनेस करता है उनको गुड्स बोला जाता है. These are purchased or manufactured for the purpose of sale. What is the purpose? Purpose of sale. मैंने बोला था goods are the things which are purchased for sale. Goods are the things which are purchased for sale and fixed assets are the things which are purchased for use. मैंने आपको एग्जांपल दिया था लैपटॉप शॉपी. लैपटॉप शॉपी में जो लैपटॉप वो ओनर यूज कर रहा है बिलिंग के लिए, दैट लैपटॉप इज गुड्स बट परचेस फॉर फिक्स असेट. परचेस फॉर यूज उसको फिक्स असेट बोलेंगे. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. हम किसी लैपटॉप शॉप में जाते हैं, वहां पे डिस्प्ले के लिए कोई लैपटॉप्स होते हैं. वो जो उनका जो काउंटर रहेगा वहां पे भी लैपटॉप्स रहेंगे. दोज लैपटॉप्स आर फॉर यूज, नॉट फॉर सेल. डिस्प्ले के लिए वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, और जो बिलिंग के लिए वो बिलिंग के लिए. हम एक डिस्प्ले पे जो रखा है उसमें से पसंद करते हैं, एंड वो सेलर लैपटॉप वाला उसके गोडाउन से या उसके स्टोर से नया लैपटॉप लेके हमारे सामने खोल के दिखाता है. सो जो खोल के दिखा रहा है, जो उसको सेल करना है, वो गुड्स है. एंड जो डिस्प्ले के लिए लैपटॉप रखे हैं ना, वो फिक्स्ड असेट्स है. वो क्या है? फिक्स्ड असेट. असेट्स है वो. गुड्स आर आल्सो असेट. गुड्स आर आल्सो असेट बट मेंट फॉर रीसेल. एंड फिक्स्ड असेट्स आर ऑब्वियसली असेट्स मेंट फॉर यूज. लिख लेना टॉप ऑफ द हेडिंग, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. मैंने बहुत पहले लिख के भी दिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली नाउ, बट लिख लेना. ठीक है. गुड्स आर द असेट्स. ये डिफरेंसेस समझ में आ गए ना? स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस. वी कैन स्टार्ट विद द एंट्रीज. गुड्स आर द assets. They are assets, right, which are held for resale. पर्पस क्या है? उसको सेल करना है एंड देन टू अर्न द प्रॉफिट. रीसेल करना है और उससे प्रॉफिट कमाना है. क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना. कोई भी चीज आपने, राइट, कोई भी चीज जो आपने परचेस की है और पर्पस है उसका सेल करना, उनको गुड्स बोलते हैं. और मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे आपको, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे. एंड मैं फिर से वही बोलूंगा. आप क्रोमा के शोरूम में जाते हो, मैं वही एग्जांपल दूंगा सो दैट आपको क्लियर हो. बिकॉज जब हम एंट्री करेंगे तो यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड द फिक्स असेट्स. देखो, हम क्रोमा के शोरूम में गए. क्रोमा, ये मैंने बोला था क्या? प्लीज मुझे बोलो. ये गुड्स आर द थिंग्स विच आर हेल्ड फॉर रीसेल एंड फिक्स असेट्स आर द असेट्स. लिख लो. अगर मैंने बोला होगा तो यस टाइप करो, अगर नहीं है तो नहीं, नो टाइप करो. फिक्स असेट्स आर द असेट्स which are held for use. ये मैंने बोला था क्या रे? मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये एग्जांपल नहीं बोला था मैंने. अच्छा ठीक है. देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल, फनी एग्जांपल है. ठीक है. आप 4 व्हीलर लेने गए आपके मम्मी पापा के साथ. आप 4 व्हीलर लेने गए. देखो एग्जांपल क्या है. 4 व्हीलर लेने गए आप आपके मम्मी पापा के साथ. मम्मी पापा, एक टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी रहती है, डेमो व्हीकल रहती है, पता है ना? वो उन्होंने आपको गाड़ी में बिठाया. योर फादर ड्रोव, राइट, एंड आप वो घूम के आ गए. घूम के आ गए मतलब यू टेस्ट ड्राइव इट. आपको गाड़ी पसंद आ गई, आपको परचेस करनी है गाड़ी.
आप वो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी परचेस करते हो या कोई दूसरी गाड़ी परचेस करते हो, मतलब वही बाइक वही कार आपने परचेस की, बट यू गेट ए डिफरेंट मॉडल, मतलब अनदर पीस, अनदर यूनिट, आप वही क्यों नहीं परचेस करते? या वो आपको वही क्यों नहीं से, चलो आपके पापा बोलते हैं या आप बोलते हो पापा यही गाड़ी चाहिए हमें, डेमो व्हीकल वाली, विल ही सेल यू? नो, ही विल नॉट सेल यू। व्हाई? आप उसको बोलो ना भाई तेरा गाड़ी सेल करना ही धंधा है ना, फोर व्हीलर सेल करना इज योर बिजनेस, तो फोर व्हीलर्स आर योर गुड्स, यू हैव परचेस फोर व्हीलर्स सो दैट यू कैन सेल इट एंड यू कैन मेक द प्रॉफिट, यही तो बिजनेस है। परचेस द गुड्स एट लोअर प्राइस, सेल देम एट ए हायर प्राइस, मेक द प्रॉफिट, ये तो बिजनेस है। व्हीकल 5 लाख में परचेस की, 5,50,000 में सेल कर दी, 50,000 का प्रॉफिट कमाया, यही तो बिजनेस है। व्हीकल्स आर गुड्स बिकॉज ही इज डूइंग बिजनेस इन दैट, व्हीकल्स आर गुड फॉर द फोर व्हीलर डीलर। ध्यान देना, उसने व्हीकल क्यों परचेस किए है? सो दैट ही कैन सेल इट एंड मेक अ प्रॉफिट, तो उसका इंटेंशन विच आर हेल्ड फॉर सेल, रीसेल करना है उसको, परचेस करके सेल करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, दूसरा फिक्स एसेट्स, वो डेमो व्हीकल में उसको बोल रहा हूं भैया मुझे डेमो व्हीकल ही सेल करो, वो बोलता है सर हम डेमो व्हीकल सेल नहीं कर सकते। मैं उसको समझा रहा हूं कि अरे तुम लोग तो व्हीकल ही सेल करते हो ना, मुझे यही डेमो व्हीकल दे दे। वो बोलता है सर ये सेल के लिए नहीं है, ये हमारे यूज के लिए, कोई कस्टमर आता है तो उसको दिखाने के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए, हम ये नहीं सेल कर सकते, दिस इज नॉट फॉर सेल, दिस इज फॉर यूज। वो क्या बोलेगा? सर भले ही व्हीकल्स आर आर गुड्स, भले ही व्हीकल्स आर आर गुड्स, हम व्हीकल्स परचेस करके सेल करते हैं, हाउएवर ये जो डेमो व्हीकल है ये यूज के लिए सर, सेल के लिए नहीं है, इसलिए हम ये सेल नहीं करेंगे। सो जो सेल नहीं करना है यूज के लिए है, फॉर यूज एंड नॉट सेल। आर फिक्स एसेट। लैपटॉप के शोरूम में गए या क्रोमा में गए, वहां पे टीवीज लगे, वॉल पे टीवी लगते, सबको पता है ये चीज, आप हम गए हो 10 बार गए हो, बट आपने कभी सोचा नहीं उस चीज पे, राइट? टीवी लगे, आपको एक टीवी पसंद आता है, आप उसको दिखाते हो, आपको ये टीवी ऐसे दिखता है, ये वगैरह साउंड वगैरह सब दिखाता है, बराबर। अब वो क्या बोलता है, ध्यान देना, आप बोलते हो मुझे ये टीवी पसंद आ गया, वो ऑर्डर करता है उधर फोन करके, तो पीछे से टीवी आ जाएगा उनके स्टोर से, आप बोलो यही निकाल के दो मुझे, यही चाहिए मुझे, ये क्यों दे रहे हो, मैंने ये मांगा है। वो क्या बोलेगा? सर ये सेल के लिए नहीं है, सेल के लिए तो ये वाला पीस है, ये वाला तो डिस्प्ले के लिए है। आप उसको बोलो ना टीवी तो आपके गुड्स है, टीवी क्यों परचेस किया, सेल करने के लिए किया है। वो बोलेगा सर भले ही हम टीवी जनरली सेल के लिए परचेस करते हैं, बट ये जो टीवी ऊपर लगा है ना, ये सेल के लिए नहीं सर, ये हमारे डिस्प्ले के लिए, हम ये किसको भी सेल नहीं करते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, बहुत पुराना मॉडल हो जाएगा तो वो निकाल देंगे वो, राइट, बट इंटेंशन उसका यूज करना था। देखो कोई भी चीज क्यों परचेस करते हो, आपने मोबाइल परचेस किया, क्यों परचेस किया आपने? किसी को सेल करने के लिए क्या, यूज करने के लिए? यूज करने के लिए, तो आपकी फिक्स एसेट है। वही वही मोबाइल शॉपी, राइट, वही मोबाइल शॉपी वाला क्यों मोबाइल परचेस कर रहा है? सो दैट ही कैन सेल टू यू। सो वही मोबाइल शॉपी के लिए गुड्स है, और मेरे लिए, हमारे लिए वो फिक्स एसेट है, क्योंकि हम यूज के लिए। ध्यान देना, मैं आपको दूसरा एग्जांपल, फोर व्हीलर, हमने जो फोर व्हीलर परचेस किए, हमने क्यों परचेस किए? इज इट योर बिजनेस टू सेल? फिर से सेल करना बिजनेस है क्या? नहीं सर, हम हमारे पर्सनल यूज के लिए, हमारे बिजनेस यूज के लिए लिए, यूज के लिए, तो वो व्हीकल आपके लिए फिक्स एसेट है। वही जिस डीलर से परचेस किया आपने, उसके लिए वो गुड्स थी, क्यों? बिकॉज उसने जो परचेस की थी वो सेल करने के लिए। व्हीकल वही, बट इंटेंशन अलग है, जिससे हमने परचेस की है उसके लिए वो गुड्स है, डीलर के लिए वो गुड्स है, और हमारे लिए वो फिक्स एसेट है। सो अब ध्यान देना, मारुति उद्योग लिमिटेड, एमयूएल, उन्होंने नेक्सा को व्हीकल सेल किया, नेक्सा डीलर, नेक्सा ने हमें सेल किया, वी द कस्टमर्स। हमने क्यों परचेस किए? हमारे यूज के लिए, या तो हमारे बिजनेस यूज के लिए, या हमारे पर्सनल यूज के लिए, एज द केस में भी। जब नेक्सा, इनके बीच में व्हीकल्स
vehicles, Maruti will manufacture the vehicles and will sell to Nexa. Nexa will purchase from MUL and will sell to customer. तो इनका इंटेंशन क्या है व्हीकल्स के लिए, राइट, टू सेल. नेक्सा ने क्यों परचेस किए, टू सेल. और हमने क्यों परचेस किए, टू यूज. MUL manufactures vehicles so that they can sell. तो vehicles are goods, MUL के लिए वो goods है. Vehicles are goods for MUL. Nexa के लिए वो goods है. They will purchase, they will sell, purchase, sell, purchase, sell. और हम हमारे लिए क्या है वो, फिक्स्ड एसेट. व्हीकल वही है बट हमारे लिए वो फिक्स्ड एसेट है. फिक्स्ड एसेट मतलब वो फिक्स्ड है, वो लॉन्ग टर्म चलेगी. 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे चलेगी. 1 साल से अगर ज्यादा एसेट चलती है उसको फिक्स एसेट बोला जाता है. 1 साल से अगर ज्यादा एसेट चलेगी उसको फिक्स एसेट बोला जाएगा या लॉन्ग टर्म एसेट बोला जाएगा, सिंपल वर्ड्स में. दूसरा, अनदर एग्जांपल, लिखते जाओ एग्जांपल्स, छोटे छोटे एग्जांपल, बहुत कंसेप्चुअल एग्जांपल्स हैं. देन नेक्स्ट, यस, सैमसंग, उनका एक डीलर है. And there is another customer. He purchased 10,000 mobiles. Samsung manufactured 10,000 mobiles and sold to whom? The dealer. ऐसे समझो, ठीक है. हाँ, डीलर परचेस्ड इट एंड उसमें से 5 मोबाइल्स उसने डिस्प्ले के लिए रखे एंड 9,995 मोबाइल्स अवेलेबल फॉर सेल कर दे, मतलब सेल के लिए. एक मोबाइल की वैल्यू एग्जांपल 50,000 है. सो 5 मोबाइल्स मल्टीप्लाई बाय 50,000, 2,50,000 जो भी रहेगा. 9,995 मोबाइल मल्टीप्लाई बाय 50,000. सैमसंग के लिए दीज मोबाइल्स आर गुड्स. डीलर के लिए दीज मोबाइल्स आर फिक्स एसेट्स. क्यों? बिकॉज उसको यूज करना है, उसको डिस्प्ले के लिए रखना है. अब डिस्प्ले के लिए क्या, ऐसे बोलोगे कि जस्ट सामने वाले की दुकान से जाके चेक करके आओ और फिर मेरे इधर परचेस कर. डिस्प्ले के लिए आप खुद परचेस करके रखोगे ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने मोबाइल डिस्प्ले के लिए रखा है तो आप पहले परचेस करोगे फिर वो डिस्प्ले के लिए रखोगे. लॉजिकल है. तो 5 मोबाइल्स, आपने भले ही 10,000 मोबाइल परचेस किए, मोबाइल्स आर योर गुड्स, बट उसमें से 5 यूनिट्स are not goods, they are fixed asset and remaining units are goods. Are you getting my point? And इसमें से, right, इसमें से मैंने एक मोबाइल परचेस किया है, 9,995 में से एक मोबाइल मैंने परचेस किया है. उसने मुझे मैं उसको बोलता हूँ 5 में से सेल करूँ. वो जो डिस्प्ले के लिए रखा है ना, उसमें से मुझे एक सेल कर. मैं बोल रहा हूँ वो जो 5 मोबाइल है वो बोलेगा सर हम ये सेल के लिए नहीं है. These 5 pieces are only for display. ये फिक्स एसेट है, हमारे गुड्स नहीं. तो वो मुझे किस में से सेल करेगा? गुड्स में से सेल करेगा, दैट इज 9,995. तो उसमें से एक जो मैंने लिया है, मेरा पर्पस यूज करने या सेल करने. जैसे डीलर ने मोबाइल सेल करने के लिए लिए थे, मैंने मोबाइल यूज करने के लिए, तो वो मोबाइल मेरे लिए फिक्स एसेट होगा. वही मोबाइल डीलर के लिए गुड्स है, सैमसंग के लिए गुड्स है, बट मेरे लिए वो क्या है, राइट, मेरे लिए वो फिक्स एसेट है. आगे नेक्स्ट, अब ध्यान देना. टाटा मोटर्स, उनके बसेस आते हैं, राइट. 4 व्हीलर भी है, मैं बसेस का एग्जांपल लेता हूं. उन्होंने बस, राइट, मैन्युफैक्चर्ड, दे आर मैन्युफैक्चरर्स.
1000 बसेस, ठीक है, उसमें से 10 बसेस kept for self use, right, right, uh, pick up and drop facility to employees. एम्प्लॉयज को लेने और लाने लेने के लिए उन्होंने 10 बसेस खुद के पास रखे टू एम्प्लॉयज। रहते ना, आपके स्कूल में भी बसेस होते थे, इफ यू रिमेंबर। देन ठीक है, देन 90 buses sold to, right, इंडियन गवर्नमेंट, ये मिलिट्री को सेल किया, एंड रिमेनिंग 9,900 buses, remaining 900 buses, oh, remaining 900 buses sold to dealer। ध्यान देना, अब out of 1000 buses they manufactured, buses are goods for them, why? They are doing business in the buses, they manufacture the bus, they sell the bus, so आप जिसमें बिजनेस करते हो ना, that is your asset, that is our goods, asset, goods is asset, but उसको goods बोलते हैं, उस asset को क्या बोलते हैं? goods। ध्यान देना, 1000 बसेस में से 10 बसेस दे आर नॉट गोना सेल, भले उन्होंने 1000 बसेस मैन्युफैक्चर किए हैं, उसमें से 10 बसेस दे आर गोना यूज फॉर देमसेल्फ, 10 बसेस सेल के लिए नहीं है, यूज के लिए। सो दीज आर फिक्स असेट ऑफ टाटा, फिक्स असेट्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड, टीएमएल, ठीक है। सो ये जो बाकी ये जो सेल करने वाले, ठीक है, दीज आर गुड्स ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड, उस पे वो प्रॉफिट कमाएंगे। 10 बसेस में क्या प्रॉफिट, सेल ही नहीं करने वाला तो प्रॉफिट कहां से? 990 बसेस यू आर गोना सेल, 90 बसेस आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल किया, एंड 900 बसेस आपने डीलर को सेल किया, आपके डीलर। अच्छा, 10 बसेस के लिए कोई बायर नहीं, आप भी यूज कर रहे हो। दूसरा, अब 90 बसेस का बायर कौन है? गवर्नमेंट। इज गवर्नमेंट अगेन सेल इट टू समवन? नो, गवर्नमेंट विल यूज इट। सो ये 90 बसेस आर गुड्स फॉर टाटा मोटर्स बट फिक्स असेट्स फॉर गवर्नमेंट। 90 बसेस, राइट, तो ये एग्जांपल लिखो, कॉपी पेस्ट। हम असेट्स कर रहे हैं ना, इसलिए मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं। हाँ, ठीक है, देखो, लिखो, टाटा मोटर्स लिमिटेड दो मैन्युफैक्चर्ड दो मैन्युफैक्चर्ड 1000 buses only 990 are for sale and 10 are for use. Therefore, right, 10 buses are fixed assets of the Tata Motors Limited. Fixed assets
of Tata Motors Limited, TML, and 990 buses are goods of Tata Motors Limited. 990 को वो क्या बोलेंगे? गुड्स. एंड 10 बसेस को क्या बोलेंगे? फिक्स असेट. बस बस ही है, बस ही है, बट इंटेंशन अलग है. 990 बस के लिए इंटेंशन है सेल करना, 10 बस के इंटेंशन है यूज करना. जिसका इंटेंशन यूज करना है वो फिक्स असेट, जिसका इंटेंशन यूज करना है वो फिक्स असेट. ठीक है, आगे. नेक्स्ट, देन TML sold 90 buses to government. Therefore, right, 90 buses इसमें से ना, right, which were goods of TML will now become fixed assets of government. Will now become fixed assets of government. Next, TML sold. Go right as लिख लेना, government will be using those buses. गवर्नमेंट क्या इसमें बिजनेस नहीं करती? बसेस में परचेस करो, सेल करो, राइट. सो अगर आप बिजनेस नहीं करते तो गुड्स नहीं, बिजनेस करते हो तो गुड्स. बिजनेस के लिए नहीं है वो, मतलब सेल के लिए नहीं है, तो फिक्स असेट. बसेस. आगे, नेक्स्ट, TML sold कितने? 900 buses to dealer. डीलर, वो डीलर बाद में कस्टमर को सेल करेगा. Therefore, 900 buses are goods for both Tata Motors Limited and its dealer. Because डीलर उसके को परचेस किया as intention is to sell. Intention is to sell. आगे, $900 buses are goods for both Tata Motors Limited and its dealer as intention is to sell. अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ. ऐसे एग्जांपल आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे. ध्यान देना, ठीक है. मैंने डेमो व्हीकल का एग्जांपल दिया, लैपटॉप का एग्जांपल दिया, मोबाइल शॉप में जाते हैं, उधर आप सपोज यूनिकॉर्न में गए. यूनिकॉर्न इज ए ऑथराइज्ड डीलर ऑफ द एप्पल. उधर लैपटॉप्स, उधर टैब्स रखे हैं, राइट, आईपैड रखे हैं, मैकबुक्स रखे हैं एंड मोबाइल्स रखे हैं, राइट. यू कैन टेस्ट देम. आप वो चेक करते हो, आपको पसंद आता है, आप फोटो वगैरह निकाल के देखते हो वगैरह. वो जो चीजें है ना,
वो मोबाइल्स, वो मैकबुक्स, आईपैड, दे आर फिक्स्ड असेट ऑफ दैट स्टोर। उस स्टोर का वो फिक्स असेट है। एंड जो एक्चुअली वो सेल करते हैं ना, इफ यू प्लेस द ऑर्डर दे विल नॉट रिमूव दैट एंड सेल यू। वो दूसरा पीस आपको सेल करेंगे, दैट इज गुड्स। उसको गुड्स बोलो, उसको हम बोलेंगे गुड्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट। देन दूसरा एग्जांपल देखो, फ्लैट कंस्ट्रक्शन साइट। आई डोंट नो तुम लोग कितने लोग कंस्ट्रक्शन साइट गए हो कभी। मैं एग्जांपल देता हूं। अब कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो तो क्या होता है, सपोज दिस इज एक, वो क्या करते हैं पता है, सैंपल फ्लैट बना के रखते हैं। दिस इज कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। अब यहां से एंट्री लिए, यहाँ पे उनका ऑफिस रहता है एंड इस सैंपल फ्लैट होता है इधर। और यहाँ पे काम अभी स्टार्ट हो जाता है इधर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो सैंपल फ्लैट है ये किस लिए है? देखो, बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स, एक्चुअली काम स्टार्ट होने के पहले वो सैंपल फ्लैट बना के रख देते हैं। क्यों? बिकॉज कस्टमर बुकिंग के लिए आएंगे तो उनको दिखाने के लिए कुछ चाहिए ना, कि फ्लैट ऐसे रहेगा। एंड उसी फ्लैट को ऑफिस कर देते, उधर ही बैठते हो, बोलते यही तो हमारा फ्लैट है, ये ऐसे है देखो। वो उनको दिखा दे पूरा फ्लैट, या छोटा ऑफिस रहेगा, बाजू में फ्लैट रहेगा। आप उनको बोलो मुझे यही फ्लैट सेल करो, बोलते नहीं, साइट कंप्लीट होने पे हम डिमोलिश करेंगे, गिरा देंगे इस फ्लैट को। बिकॉज ये डिस्प्ले के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, यूज के लिए, ये सेल के लिए नहीं है। यहाँ पे जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, राइट, इसमें जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, ये फ्लैट्स गुड्स होंगे, ये फ्लैट्स गुड्स होंगे उस किसके, वो कॉन्ट्रैक्टर के या प्रमोटर के, बिल्डर के। बट ये जो सैंपल फ्लैट है, दिस इज फिक्स असेट, दिस इज फिक्स असेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सैंपल फ्लैट इज नॉट मेंट फॉर सेल। वो क्या करते हैं, जब पूरी साइट कंप्लीट हो जाएगी, सब फ्लैट सेल हो जाएंगे, तो ये वाला उसको गिरा देंगे, उसको प्लेन कर देंगे, फिर वो पूरी सोसाइटी बना के हैंड ओवर कर देंगे। सो फ्लैट, ये फ्लैट ही है, बट व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द इंटेंशन? इंटेंशन इज टू यूज। एंड ये जो फ्लैट्स है यहाँ पे, व्हाट इज द इंटेंशन? टू सेल। तो इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा, राइट, ये गुड्स है और ये फिक्स असेट है। इंटेंशन देखना होता है, कोई भी चीज परचेस करते हो ना, इंटेंशन देखो। अगर इंटेंशन इज टू यूज, उसको फिक्स असेट बोलो। आपने लैपटॉप परचेस किया, इंटेंशन क्या है? यूज करना, फिक्स असेट फॉर यू। आपने वॉच परचेस किया है, इंटेंशन क्या है? यूज करना, फिक्स असेट फॉर यू। आपने व्हीकल परचेस की, इंटेंशन यूज करना, फिक्स असेट फॉर यू। घर में फ्रिज परचेस किया है, इंटेंशन इज टू यूज इट, फिक्स असेट। वॉशिंग मशीन परचेस किया है, इंटेंशन इज टू यूज इट, फिक्स असेट। एंड यूज इज मोर देन 1 ईयर। दूसरी कंडीशन है फिक्स असेट्स के लिए, जो मैंने यहां पे लिखा ना, राइट, किधर लिखा मैंने? यहां पे, फिक्स असेट्स are the assets which are held for use and not resale, and they are expected to be used for more than 12 months. उनका यूज 1 साल से ज्यादा है तो उनको फिक्स असेट बोलते हैं। उनका यूज 1 साल से ज्यादा है, उनको फिक्स असेट बोलते हैं। इज माय वॉइस क्लियर और नो? प्लीज चेक, आई एम ऑडिबल ना, या माय वॉइस इज ब्रेकिंग अप? चेक करो। इज माय वॉइस ब्रेकिंग अप? टाइप यस और नो, या आवाज ही नहीं आ रही मेरी? प्लीज चेक। तुम लोग सो गए क्या बाकी लोग?
अरे मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है? ओके, बी अलर्ट, ठीक है। देन गुड, देन सो फिक्स असेट्स आर द असेट्स। आपने फ्रिज परचेस किया फॉर यूज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए वो फिक्स असेट है। आपने कैलकुलेटर परचेस किया फॉर मोर देन टू यूज मोर देन 1 ईयर, फिक्स असेट है। मोबाइल परचेस किया सो दैट यू कैन यूज मोर देन 1 ईयर, फिक्स असेट है। वही जिससे आपने मोबाइल लिया है डीलर, उसके लिए वो गुड्स था। जिससे फ्रिज परचेस किया डीलर, उसके लिए वो गुड्स था। जिससे व्हीकल परचेस की, उसके लिए गुड्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो चीज वही है, व्हीकल वही है, एक उसको गुड्स बोल रहा है, एक उसको फिक्स असेट बोल रहा है। इंटेंशन, इसलिए मैंने लिखा है गुड्स आर द असेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर रीसेल, ठीक है। सो आगे, एंड फिक्स असेट्स आर द असेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर यूज एंड नॉट फॉर द रीसेल। देन देखो गुड्स के कितने अच्छे एग्जांपल्स दिए उन्होंने, ठीक है। मेडिसिन आर द गुड्स फॉर द केमिस्ट। केमिस्ट, मेडिकल शॉपकीपर, राइट, he purchases medicines for sale, तो medicines is goods for him. Vegetables are goods for the vegetable vendor, like parts like tires, engine gearbox, cables are produced by the vehicle manufacturer like Bajaj Auto, Hero Motors, etc. They buy those so that they can manufacture and sell. They are there, in short, raw material. That is, raw material is goods, raw material which is used to manufacture finished goods. So sugarcane for sugar industry is goods, cotton for textile industry is goods, ठीक है, raw material. Then capital and drawings. What is the capital? Total amount invested into business by owner is called as capital. Amount invested by the owner. When you start the business, owner has to invest into business. उसको पैसा डालना पड़ता है. That amount is called as capital. ठीक है, ये इक्वेशन जाने दो, ये लास्ट चैप्टर का इक्वेशन है. Capital is a liability of the business, as this amount is payable by the business enterprise to the owner when the business is closed down. मैंने बोला था ओनर, हम बिजनेस है एंड हमारा ओनर है. ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ही इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज. ओनर स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज. उसको उसके सेविंग में से पैसा डालना होगा. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल भांडवल होना चाहिए, उसके सिवा यू कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस. तो ये जो 10 लाख डाला है, कभी ना कभी ओनर को रिटर्न करना पड़ेगा ना. वी आर अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस, हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, ओनर के लिए नहीं. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड ओनर डिफरेंट. तो बिजनेस हैज टेकन 10 लाख रुपीज फ्रॉम द ओनर. बिजनेस हैज टेकन 10 लाख रुपीज फ्रॉम द ओनर. कभी ना कभी तो रिटर्न करना पड़ेगा. जो भी चीज रिटर्न करनी पड़ेगी आगे जाके, वो लाइबिलिटी होती है आपकी. लोन लिया है, रिटर्न करना पड़ेगा, लाइबिलिटी. गुड्स क्रेडिटर पे, क्रेडिटर्स से क्रेडिट पे परचेस किए, पैसे देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी. किसी फ्रेंड से लोन लिया है, रिटर्न करना पड़ेगा, लाइबिलिटी. सो ऑन सिमिलर बेसिस कैपिटल, ओनर से 10 लाख रुपए लिए, इज ए कैपिटल ऑफ द बिजनेस. इट इज टू बी रिपेड. जब बिजनेस बंद होगा तो हम ओनर को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, along with profit and everything. So इसलिए capital is a liability. Then drawings, the amount of the cash or the value of goods, assets, etc. ठीक है, withdrawn by owner from the business for personal use. अगर बिजनेस से ओनर पैसे निकालता है, he withdraw 50,000 for right daughter's marriage, he withdraw right
10,000 फॉर ट्यूशन फीस ऑफ सन. एग्जाम्पल, वो बिजनेस से पैसे उठा रहा है, ओनर बिजनेस में पैसे डालता है, इज ए कैपिटल, उसको कैपिटल बोला जाता है. जब ओनर बिजनेस में पैसे डालेगा कैपिटल, एंड जब ओनर बिजनेस से पैसे उठाएगा उसको बोला जाएगा ड्रॉइंग्स. दे आर अपोजिट. ठीक है, दैट इज द ड्रॉइंग्स. आपका लैपटॉप का शोरूम है और एक लैपटॉप आप आपके बेटे के लिए लेके जाते हो वहां से, सो दैट इज योर ड्रॉइंग्स. आपकी ड्रॉइंग्स है, बिजनेस बोलेगा ड्रॉइंग्स है, बिकॉज यू आर टेकिंग अवे गुड्स ऑफ द बिजनेस फॉर योर पर्सनल यूज. उसके लिए आप पेमेंट नहीं करने वाले कि चलो गले में 50,000 डाले, ऐसे नहीं. आप बोलते हो मेरे कैपिटल से माइनस करवा लो, ओनर बोलता है मेरे कैपिटल से माइनस कर. समझ रहे? ड्रॉइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल. सो owner gives money to the business capital, owner takes money from the business for personal use, is the drawings. Then debtor and creditor. Debtor, a person who has to pay to the business, who has to pay to the business. मैं अब आपको टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन दिखा रहा हूं. ठीक है, a person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtor, right? A debtor is a person who owes money to the business. I owe you. I owe you means मुझे आपको पे करना है. I am supposed to pay to you. I owe you. I am a debtor. You are my creditor. Debtor owes creditor. लिख लेना एक ऊपर और एक. Debtor owes creditor. Debtor owes to creditor. Buyer owes to the seller. Buyer को seller को पैसे देने होते हैं. Buyer is supposed to pay to seller. फ्री में तो गुड्स नहीं मिलते हैं, फ्री में तो सर्विसेज नहीं मिलते हैं. फ्री होगा तो ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा. सो ट्रांजैक्शन में मनी वैल्यू रहती है, तो यू हैव टू पे. सो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे. ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी on a credit rupees 1 lakh. A purchase goods from B on credit, मतलब पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, उधारी पे. A purchase goods from B of rupees 1 lakh on credit. So in this transaction, A is a buyer who becomes debtor. Buyers becomes debtors. And B is a seller जो बन जाएगा creditor. So A will say to B, I owe you. A owes B. A owes B rupees 1 lakh for goods purchased on credit. Debtor owes creditor. A owes B. A is a debtor, B is a creditor. और ये डेटर क्रेडिटर क्यों बने? बिकॉज इनके बीच में परचेस सेल का ट्रांजैक्शन हुआ है. और किस बेसिस पे हुआ? क्रेडिट पे. लेटर ऑन ए पे 60,000. आज ए कितने का डेटर है? 1 लाख का. बी कितने का क्रेडिटर है? 1 लाख का. दोनों इक्वल होने चाहिए, वैल्यू शुड बी सेम. लेटर ऑन ए पेज टू बी, ए बोलता है ले ले 60,000. तो नाउ ए इज अ डेटर ऑफ जस्ट 40,000, बी इज अ क्रेडिटर ऑफ जस्ट 40,000, बिकॉज अभी कितना पेमेंट होना बाकी है? 40. Later on A pays 30,000 और 30,000 पे किया, तो 40 में से 30 पेड हो गया, अभी भी 10,000 बाकी है. देखो, जब A ने B से गुड्स परचेस किए क्रेडिट पे 1 लाख पे, A बोलता है I owe you 1 lakh, I owe you 1 lakh. फिर A ने 60,000 B को दिए, बोलते हैं आउट ऑफ 1 lakh I paid 60,000. नाउ I owe you 40,000. I am your debtor 40,000. You are my creditor 40,000. फिर 30,000 दिए, तो 40 में से 30, तो ए बोलेगा नाउ आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ 30,000 आउट ऑफ 40, बैलेंस 40, आई ओ यू 10,000. मैं तेरा डेटर हूं 10,000 का, तू मेरा क्रेडिटर है 10,000 का. ठीक है. सो डेटर इज ए बायर जिससे पैसे लेने हैं, राइट, एंड क्रेडिटर इज ए सेलर जिसको पैसे देने हैं. वी आर द बिजनेस. सो डेटर की डेफिनेशन क्या लिखी है? A person who has to pay to the business. बिजनेस को जिसको पे करना है, मतलब बिजनेस को जिससे रिकवर करना है. जनरली हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ से देखते हैं, राइट.
बिजनेस के पार्टनर जिनसे हमें पैसे लेने हैं डेटर्स, जिनको देने हैं क्रेडिटर्स. डेटर्स आर असेट बिकॉज उनसे पैसे आएंगे, कैश आएगी. और क्रेडिटर्स इज ए लाइबिलिटी बिकॉज हमें उनको देना है. ठीक है, देखो, creditor is a person to whom business has to pay for getting goods and services on credit. This is very important. Cash transactions में debtor creditor कभी नहीं बनते. Cash transactions में debtors and creditors कभी नहीं बनते. Why? Because cash में तो पेमेंट तुरंत हो जाता है. A ने B से गुड्स परचेस किया और उसके मुंह पे 1 लाख रख दिया. ऐसे नहीं करता, 1 लाख दे दिया उसको. तो नाउ A is not supposed to pay anything, B is not supposed to receive anything. हो गया, ट्रांजैक्शन खत्म. Now they are just buyer and seller. A is a buyer, B is a seller. They are not debtor and creditor. But जब क्रेडिट पे परचेस किया जाएगा तब रिलेशनशिप एक्सटेंड होती है, डेटर एंड क्रेडिटर. आगे, राइट. क्रेडिटर इज अ पर्सन whom business owes. बिजनेस ओज हिम. बिजनेस को जिनको पैसे देने हैं, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस. बैड डेट्स भी मैंने बोला था. अगर कोई डेटर आपको पैसे ही नहीं देता, आपने उसको सेल किया, यू सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 टू हिम, वो भाग गया, दे नहीं रहा है, आपके फोन ही नहीं उठा रहा है, कितना भी मारो उसको, कुछ भी करो, बोलता मैं नहीं दे सकता. नाउ यू हैव सोल्ड हिम गुड्स, आपने उसको गुड्स दिए, सेल किया आपने उसको 20,000 का, वो बोलता मैं 1 मंथ में पे करूंगा. आप 1 मंथ के बाद बोल रहे हो वो पे नहीं कर रहा है, 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, कितना भी फोर्स लगाओ, पैसे ही नहीं दे रहा है, पैसे ही नहीं दे रहा है. आप बोलते हो यार मेरा बैड डेट्स हो गया, मेरा लॉस हो गया. देखो, फार्मर्स डोंट repay the loans. Maybe reason can be anything. ये common issue इसलिए मैं बोल रहा हूँ. So the loans which are not repaid by the farmers is a bad debts of the banks, because banks has given them loan and bank has to recover the loan. Bank has to recover the loan and they cannot pay. Reason I am not bothered about. They cannot pay. तो मैं बोलूंगा बैंक के लिए बैड डेट्स है. जो पैसे रिकवर करने हैं और रिकवर नहीं होते उसको बैड डेट्स बोलते हैं. इट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस. एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर is called as bad debts. It is a revenue loss. Revenue क्या अभी तक कुछ पता नहीं है. It is a loss of the business. Loss. ठीक है, आपने आपको फ्रेंड को पैसे दिए, वो आपको रिटर्न ही नहीं कर रहा है, आप उसको बोलोगे ये मेरा बैड डेट्स हो गया. क्या बोलोगे? ये मेरा बैड डेट्स हो गया. समझ में आ रहा है? आगे. और आपने किसी से पैसे लिए और आप उसको दे ही नहीं रहे हो, तो वो उसका बैड डेट्स हो गया. ठीक है, आप बोलो बैड डेट्स समझ ले. ठीक है, मतलब मैं तुझे नहीं देने वाला. ठीक है, देन अकाउंटिंग ईयर. मैंने जो कंसेप्ट अभी तक कवर किए है वो मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिखा रहा हूँ. इट इज अ पीरियड ऑफ 12 months फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लोज बाय द प्रोप्राइटर. 12 months इंडिया में अप्रैल से मार्च. अर्लियर द प्रोप्राइटर्स वर फॉलोइंग द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर और एनी अदर ईयर एज पर द ट्रेडिशन. उनको जो मर्जी थी पहले वो करते थे. हाउएवर फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, मैंने बोला था इंडिया में इनकम टैक्स के हिसाब से रखते हैं. फॉर इनकम टैक्स पर्पस accounting year has been decided as what? 1st April to 31st March. It starts on 1st April, ends on 31st March. So today we are in accounting year 2021. 2020-21. हम अभी अगस्त सितंबर में, अगस्त में है, तो हम कौन से अकाउंटिंग ईयर? अगस्त 20 है, तो हम 2021 अकाउंटिंग ईयर में है. अभी जो अकाउंटिंग चल रही है वो कौन से ईयर की अकाउंटिंग चल रही है? अकाउंटिंग ईयर 2021. ठीक है, आगे. एट द एंड ऑफ द ईयर ए प्रोप्राइटर हैज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द पोजीशन. आई हैव नॉट डिस्कस दिस टर्म, सो डोंट वरी. हमें प्रॉफिट लॉस ढूंढना होता है एट द एंड. हम पास हुए या फेल हुए उस बिजनेस में, हमारे एसेट्स कितने, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, ढूंढना होता है. राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं.
हम असेट्स पे आके रुके थे, राइट? असेट्स, देखो असेट की डेफिनेशन क्या लिखी है, एनी फिजिकल थिंग or right, any physical thing or right owned by the business that has money value is called as asset. मैंने बहुत टेक्निकल डेफिनेशन लिख के दी थी, resources owned and controlled by the enterprise giving future economic benefits, right? वो डेफिनेशन कहां से थी मैं आपको दिखाता हूं. This was the definition. Asset is a resource controlled by entity as a result of the past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. Right? Indian Accounting Standard Board, IASB, Indian Accounting Standard Board. This is given by the accounting standards. Always remember, India में जो भी accounting होती है, that is governed by, that is managed by, or that is जब भी accounting करते हैं, we have to follow accounting standards. Standards है, accounting के standards है, and they are given by Institute of Chartered Accountants of India. उनका एक board है, Accounting Standard Board, ASB, Accounting Standard Board. वो accounting standard boards में वो जो स्टैंडर्ड रहते हैं उसके हिसाब से हमें अकाउंटिंग करनी होती है. एंड वो जो बाइबल है हमारे लिए, बाइबल, गीता, कुरान, जो बोलना है बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज बाइबल, गीता और कुरान. मतलब इतना रिलेवेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है. एंड उसमें ये डेफिनेशन है एसेट्स की जो मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है? एंड दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन. देन so they are physical things or rights owned. You have right, it's your, no one can take away from you. जो आपका है, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, that is your asset, right? Monetary values, obviously it has to money value. The ownership of the asset must be with the business. Land, goodwill, patents, computers, etc. मैंने फिक्स assets अभी बात की. फिक्स assets मतलब the assets which give long term benefit, 12 months. Long term means more than 12 months. Accounting में long term मतलब more than 12 months to the business are known as fixed asset. These assets may be tangible in मैं आने वाला उस पे, ठीक है? Okay. Then this is no longer applicable. ये concept अभी नहीं है, मैं समझाऊंगा वो भी, don't worry. When I was student तभी ये चली गई है, बट हमारा महाराष्ट्र बोर्ड अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे कुछ डिलीट हो चुका है, ठीक है? असेट्स, ये टाइप्स में आने वाला हूं, ध्यान देना. असेट्स, उसके बाद लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज पे भी मैंने थोड़ा डिस्कशन किया है. लाइबिलिटीज आर द, यू आर लायबल टू रिपे, जो जो आपको पे करना होता है ना, वो एक आधा कोई एम्प्लॉय ने आपके इधर काम किया है, 2-3 मंथ काम किया, आपने उसकी सैलरी नहीं दी, यू आर लायबल टू पे हिज सैलरी. यस, सो सैलरी पेएबल इज योर लायबिलिटी. आप ऑफिस रेंट पे, आपका ऑफिस है, 4-5 मंथ से आपने रेंट ही पेड नहीं किया, तो आप ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते, यू हैव टू पे द रेंट. दैट रेंट पेएबल इज योर लायबिलिटी. आपने लोन लिया है तो रिपे तो करना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा, इट इज योर लायबिलिटी. यू आर लायबल, यू आर ऑब्लिगेटेड, तो ये आपकी लायबिलिटी. बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा, आई एम लायबल टू दिस, आई एम अकाउंटेबल फॉर दिस, आई एम ऑब्लिगेटेड टू दिस. कभी सुना है? आपसे कोई गलती होती है और बोलते हैं आई एम लायबल फॉर दिस मिस्टेक, आई विल रेक्टिफाई इट. क्यों बोलते हो? बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल. सो रिस्पॉन्सिबल मतलब ये आपकी लायबिलिटी, आपको वो काम करना पड़ेगा. यू आर टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी.
So when you are taken the loan, you are liable to repay. It's your liability. If you purchase goods on credit, आपने उसको बोला है मुझे गुड्स दे दे, मैं 1 मंथ के बाद पेमेंट करता हूं, यू आर लाइबल टू रिपे यार, आपको पे करना पड़ेगा. यू कैनॉट एस्केप, यू कैनॉट एस्केप अवे फ्रॉम द लाइबिलिटीज. विजय माल्या जैसे भाग के नहीं जाना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव बोरोड द फंड्स, यू शुड रिपे इट. दैट इज द लाइबिलिटी. वो क्यों भाग के गया है? बिकॉज ही कैन नॉट रिपे हिज लाइबिलिटी. ऐसे बहुत लोग हैं, नीरव मोदी वगैरह एग्जांपल, दे भाग के चले गए. क्यों? बिकॉज जो उन्होंने लोन्स लिए थे, दे कुडंट रिपे द लोन्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब लाइबिलिटी खत्म हुई क्या? भाग जाने के बाद लाइबिलिटी खत्म होती है क्या? नहीं. एग्जांपल रिलायंस के केस में, यू राइट अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी वाज इन प्रॉब्लम, इन ट्रबल. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अनिल अंबानी हेल्प्ड हिम. उसके जो लाइबिलिटीज थे, पेमेंट किया अनिल अंबानी ने, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया. भाई पे कोई बुरी दिन ना आए इसलिए उसने किया. लास्ट 1 or 2 years में ये बात है. सो होता है ना, क्रेडिटर्स वगैरह जिनसे लोन लिया उनको पेमेंट मिलने से मतलब है ना. अनिल अंबानी मेड पेमेंट फॉर द मुकेश अंबानी, ही डिड इट. आपको पैसे मिलने से मतलब है ना. मैं देता हूं, बाद में मैं मेरे भाई से ले लूंगा, तुझे जब होगा तब दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं. तुझे जब होगा, नहीं देगा तो भी चलेगा. सपोज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लाइबिलिटी, आप कॉलेज के कैंटीन में गए, पूरे मंथ फ्री में खा रहे हो, उसको बोलते हैं मंथ के एंड में पैसे दूंगा, तो आपका बिल बन गया 1000 पूरे मंथ का. इट इज योर लाइबिलिटी टू पे करना है. आप क्या बोलते हो? मेरे अकाउंट में ऐड कर दो. तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आप उधारी पे ले रहे हो तो लाइबिलिटी बन रही है आपकी. पे तो करना पड़ेगा ना आपको. सो लाइबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू पे. देखो लाइबिलिटी का डेफिनेशन, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स. रिसीवेबल इज असेट, पेएबल इज अ लाइबिलिटी. रिसीवेबल मतलब वो कैश में आ जाएगी, इसलिए असेट. इट इज माय राइट टू रिकवर द मनी. If I have sold goods to you, it is my right to recover the money. It is my asset, because assets are rights. If I have sold goods to you, it's my right to receive the money. It's your obligation to pay me the money. देखो, buyer and seller. Seller has sold goods to the buyer on credit. On credit. सेलर ने बायर को 10 लाख के गुड्स सेल किए ऑन क्रेडिट. इसके वजह से क्या हो गया? सेलर गॉट राइट. सेलर को राइट मिला. क्या राइट मिला? टू रिकवर ₹10 lakhs फ्रॉम बायर. दिस इज ऑन क्रेडिट. एंड बायर का ऑब्लिगेशन बन गया. ऑब्लिगेशन क्या? he has to pay ₹10 lakhs to the seller. When you sell goods on credit, it is your right to recover the money. They are debtors. That right is called as debtors. It is an asset. And when you buy goods on credit, it is your liability. You are obligated to pay. Obligation to pay is a liability. So seller के लिए right है, seller के लिए वो asset है, इसलिए debtors are your asset. And buyer के लिए obligation है, liability है. Buyer की liability, किसी की asset किसी के लिए liability होती है. किसी की asset किसी के लिए liability होती है. किसी की liability किसी के लिए asset होगी. Like seller की asset buyer के लिए liability है, buyer की liability seller के लिए asset है. So ये right है, right to receive the money is asset, debtors. Obligation to pay the money is a liability, creditors. So I am very clear in this. So anything, right? Anything right होना चाहिए. ये मेरा है. It is your asset, no doubt. ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं आपको क्यों फोर्सफुली बोल रहा हूं? So that you will understand. आगे दूसरा, बैंक has given loan to borrower. Bank is a lender, has given loan to borrower. Bank has a right to recover
दो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बैंक के पास राइट है तो इट इज असेट ऑफ द बैंक, हैज टू रिकवर द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड बोरोवर हैज अ ऑब्लिगेशन टू पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बोरोवर, इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बोरोवर। मैं लाइबिलिटी को चिंता बोलता हूं जानबूझ के, वो चिंता था चिता चिता नहीं, वो अपना सिंपल लाइबिलिटी मतलब चिंता। आपको हमेशा टेंशन रहेगा, मुझे पे करना है, मुझे पे करना है, मुझे पे करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू आर टेकन व्हीकल ऑन लोन, इट इज योर लाइबिलिटी टू प्रीपे। आपको हमेशा टेंशन रहेगा, इसलिए मैं बोलता हूं चिंता। सो लाइबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस टू पे। क्या लिखा है लाइबिलिटीज की डेफिनेशन? अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स is known as liability. It is a debt or amount due from business to others for the benefits received by the business. जो हमें बेनिफिट्स मिले क्रेडिट पे, जो बेनिफिट्स मिले क्रेडिट पे, हमने पेड नहीं किया है। वी परचेज द गुड्स, ये बेनिफिट है, गुड्स परचेस हुए। वी परचेस व्हीकल, बेनिफिट। वी परचेस लैंड, फ्लैट, ऑल दोस थिंग्स, मशीनरीज ऑन क्रेडिट, बेनिफिट मिल रहा है। बट उसके लिए तो पेमेंट, बेनिफिट फ्री में कभी नहीं आता है, यू हैव टू पे इट। अगर आपने पेड किया है, आपकी चिंता खत्म हो चुकी है। आपने एक बार पेड किया, आपको क्या चिंता है? कुछ नहीं। बट अगर आपने पेड करना बाकी है तो आपको हमेशा चिंता रहेगी, मुझे पे करना है, पे करना है। दैट इज लाइबिलिटी। इसलिए मैं बोलता हूँ चिंता। ऐसे लैंग्वेज, एक्चुअल लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं मराठी में मुझे भी नहीं पता, बट मैं बोल रहा हूँ चिंता मतलब समझ में आएगा। आपने कुछ परचेस किया, आपको हमेशा चिंता रहेगी कि मुझे पे करना है, दैट इज लाइबिलिटी। आपने पेड कर दिया तो आपकी चिंता खत्म, इसलिए लाइबिलिटी खत्म। समझ में आ रहा है? सो लाइबिलिटीज, लोन टेकन, क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट अभी तक मैंने बोला नहीं। जिन बच्चों ने एकदम इनिशियल लेक्चर्स अटेंड किए थे उनको पता है ओवरड्राफ्ट क्या। मैंने बोला था कि करंट अकाउंट, ध्यान देना, बिजनेस ओपन्स बैंक अकाउंट, बिजनेस ओपन्स अकाउंट विद द बैंक। बिजनेस का अकाउंट होता है, उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। जैसे हम सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, इंडिविजुअल्स ओपन सेविंग्स अकाउंट, इंडिविजुअल ओपन सेविंग्स अकाउंट। हम सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में, सेविंग्स, ठीक है। वैसे बिजनेस भी अकाउंट ओपन करता है। रिलायंस also has an account with the bank. Reliance also has an account with the bank. Tata Motors has an account with the bank. Try to understand, right? Ekatvam Camp has account with the IDBI Bank. हमारा बैंक में अकाउंट है, मेरा पर्सनल अकाउंट भी है, वो सेविंग्स अकाउंट। और एकत्वम कैम्प का जो अकाउंट है, दैट इज अ करंट अकाउंट। बिजनेस का अकाउंट इन द बैंक इज अ करंट अकाउंट। करंट सेविंग्स अकाउंट में होता क्या है कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आप कितना पेमेंट कर सकते हो? 1 लाख का ही। इफ यू 1 लाख यू कैन विड्रॉ ओनली 1 लाख, नॉट मोर देन दैट। करंट अकाउंट में भले ही आपके अकाउंट में 1 लाख है, यू कैन विड्रॉ मोर देन 1 लाख। ये फैसिलिटी होती है करंट अकाउंट को, सेविंग्स अकाउंट को ये फैसिलिटी नहीं है। करंट अकाउंट को बेनिफिट है, सपोज मुझे बेनिफिट है कि आई कैन विड्रॉ अप टू 1,40,000। मतलब अगर 40,000 का ओवरड्राफ्ट है, फैसिलिटी है, मींस अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख है तो मैं 1,40,000 तक विड्रॉ कर सकता हूं। अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख है, 10,40,000 तक मैं विड्रॉ कर सकता हूं। 40,000 का बेनिफिट है, नहीं है फिर भी मैं विड्रॉ कर सकता हूं। सो मुझे पेमेंट करना है, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, मैंने बैंक से 1,40,000 निकाले। आप बोलोगे सर निकाल ही कैसे सकते हो अगर आपके अकाउंट में 1 लाख है? वो सेविंग्स के लिए। बट करंट अकाउंट में यू कैन विड्रॉ मोर देन व्हाट यू हैव इन योर अकाउंट। ये फैसिलिटी बिजनेस वालों को है, सबके लिए नहीं है। सो मैंने बैंक में 1 लाख है, बट मैंने कितने निकाले? 1,40,000। मैंने कितना एक्स्ट्रा निकाले? 40,000। ये क्या फ्री में तो नहीं, मुझे उनको देना पड़ेगा रिटर्न, उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इट इज लाइक ए लोन, शॉर्ट टर्म लोन। कितने? 4-5 दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए लोन रहेगा वो। मैं बैंक को बोलूंगा कि आप मुझे 40,000 दे दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ओवरड्राफ्ट अपने आप होता है वो। सो नाउ मैंने उनसे 40,000 लिए, मुझे रिपे करना पड़ेगा वो। ऐसे में वैसे नहीं रख सकता। ये चिंता है मेरे लिए, ये मेरे लिए लायबिलिटी है। उसके साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा।
वो क्या फ्री में पैसे यूज करने को देंगे क्या आपको उनके? वो 10 दिन का भी इंटरेस्ट लगाएंगे। 2 दिन के लिए उठाए तो 2 दिन के, एक लिए उठाए तो 1 दिन का इंटरेस्ट लगाएंगे डेफिनेटली। ओवरड्राफ्ट, सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर आप अवेल करते हो, मतलब आपने पैसे उठाए बैंक से, तो देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, आपको पे करने पड़ेंगे। देन आगे क्या लिखा है उन्होंने, लेट मी शो यू। एक्सपेंसेस पेएबल आउटस्टैंडिंग, ये अभी तक बोला नहीं है, जाने दो, ठीक है। देन मेजर टर्म्स मैंने कवर किए, मेजर टर्म्स मैंने कवर किए, तो यहाँ पे हम लिख रहे थे, ठीक है। गिव मी 5 मिनट्स देन आई विल वाइंड अप, ठीक है। एक्सटेंड हो सकता है लेक्चर 1 घंटा, मतलब 1 घंटा नहीं, आई ऑलवेज टेक एडिशनल लेक्चर, ज्यादा होता है मेरा, ठीक है, ध्यान देना। और ये टर्म समझ में आ गया ना, अकाउंटिंग इतनी इजी हो जाएगी आपके लिए, इतनी हो जाएगी, मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर आप फिर से वही चीजें समझा रहे हो, रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आगे की मेरी जर्नी इजी हो जाएगी। सो रिसोर्सेस ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द एंटरप्राइज गिविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है थिंग्स ओन्ड, प्रॉपर्टीज ओन्ड एंड राइट्स ऑफ द बिजनेस और एसेट्स। आपको जो डेफिनेशन लिखनी लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कंसेप्चुअल डेफिनेशन ये। सो लैंड परचेस, इट्स माय राइट, इट्स माय लैंड, मैं उसको किसके लिए भी यूज कर सकता हूं, मैं उस पर फार्मिंग कर सकता हूँ, उस पर फैक्ट्री डाल सकता हूँ, उसको प्लेग्राउंड कर सकता हूँ, उसको मैं सेल भी कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। आई हैव राइट, आई एम ओनर, इट्स माय एसेट। एंड अगेन इट इज विच एसेट, फिक्स्ड एसेट। क्यों रे? बिकॉज I have purchased the land for more than 12 months. Intention सालों साल, बिल्डिंग मैंने बिल्ड की है या परचेस की है, मैं वहां पे रह सकता हूँ, मैं वहां पे ऑफिस कर सकता हूँ, वहां पे मेरा शोरूम कर सकता हूँ, मैं रेंट पे दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है उसको क्या करना है। समझ में आ रहा है? वहां पे लाइब्रेरी कर सकता हूँ बच्चों के लिए, वहां पे ट्यूशन ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है? बिल्डिंग इज योर प्रॉपर्टी, इज योर असेट। एंड अगेन बिल्डिंग जनरली हम 12 मंथ से ज्यादा के लिए परचेस करते हैं, इट इज फिक्स्ड असेट। प्लांट एंड मशीनरीज, बजाज ऑटो लिमिटेड एज ए प्लांट इन औरंगाबाद, इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट बजाज ऑटो लिमिटेड, सबको पता है बजाज। जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील इंडिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, हैव द प्लांट इन अलीबाग, अलीबाग के इधर उनका प्लांट है। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में प्लांट है, थाउजेंड्स ऑफ एकड़, टाउनशिप है उनकी अलग से एम्प्लॉयज के लिए। ध्यान देना, बहुत बड़ा प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट जेएसडब्ल्यू स्टील। ध्यान देना, दे हैव ह्यूज मशीनरीज, ह्यूज प्लांट्स। Those plant and machineries are being purchased, have been purchased so that they can use in the manufacturing of steel. औरंगाबाद में जो प्लांट है, या आप अगर पुणे के आजू बाजू चाकन एरिया में गए होंगे, आप नगर रोड पे एमआईडीसी में गए होंगे वगैरह, तो वहां पे जो प्लांट्स बड़े बड़े होते हैं, they are the fixed asset of the business. They have purchased it, they have installed it so that they can use it for long term. So they are fixed assets. ठीक है, आगे इंटेंशन सेल करना नहीं है, यूज करना है, उससे गुड्स बनाएंगे और वो सेल करेंगे। कंप्यूटर्स आपने एक कोई मूवी देखी होगी, सपोज एग्जांपल एक कोई ऐसी जिसमें मुझे, ठीक है जाने दो, आपके कॉलेज में कंप्यूटर लैब होती है, वो ले लो ना। वो जो कंप्यूटर लैब है उसमें 20 25 30 40 50 कंप्यूटर्स हैं। कॉलेज ने वो परचेस किए बच्चों को बेचने के लिए क्या? नहीं, यूज करने के लिए। तो वो आपको सिखाते हैं, while giving the services they are using those computers, उनका काम है एजुकेशन सर्विसेज देना, और वो करने के लिए वो दे आर यूजिंग फिक्स कंप्यूटर्स। दैट कंप्यूटर इज फिक्स एसेट। जो लैब है ना वो फिक्स एसेट है, लैपटॉप्स, ठीक है। आईटी सेक्टर में
ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय के पास क्या रहते हैं, कंप्यूटर्स रहते हैं। आईटी कंपनी में अगर आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं उनके पास जनरली लैपटॉप रहेगा। इज इट ओन बाय योर पेरेंट्स और द कंपनी? कंपनी। जब अगर आपके पापा स्विच करते हैं, कोई दूसरे कंपनी में जाते हैं, तो लैपटॉप उनको रिटर्न करना पड़ेगा, बराबर ना, देना पड़ता है, चाहे तो आपके पापा को पूछो। इट इज ओन्ड बाय द कंपनी, सो कंपनी की एसेट है विच दे आर यूजिंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू देयर क्लाइंट। इन्फी में आपके पापा जॉब पे हैं, टीसीएस में आपके पापा, एक्सेंचर में, आईबीएम में, जिधर भी है, they have the laptop. Maybe your father is using it, but it is not his asset, it is the asset of the company to, right, with which he is working. If he leaves the job, right, he has to return the laptop. अगर वो रिटर्न नहीं करते तो उनको पैसे उनके सैलरी से कट कर लेंगे वो, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिट इज एन असेट ऑफ द कंपनी, और बाद में वो नए एम्प्लॉय को दे देंगे वही लैपटॉप। So they are using that laptop for 3, 4, 5, 6 years down the line. It is their fixed assets. Cash balance, bank balance, debtors, inventories, they are current assets. दो टाइप्स के assets होते हैं, एक होते हैं फिक्स असेट्स एंड एक होते हैं करंट असेट्स। फिक्स असेट्स मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म चलेंगे, एंड वो फिक्स्ड होते हैं, जनरेट फिक्स्ड, वो डेली चेंज नहीं होते, कभी कभार चेंज होते हैं। यू हैव परचेज द, आपने, आपका ऑफिस है, यू हैव बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू हैव स्टार्टेड योर ओन प्रैक्टिस। एग्जांपल, यू हैव बिकम ए लॉयर, यू हैव स्टार्टेड योर ओन प्रैक्टिस, राइट। आप कंसल्टेंट हो, राइट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो, आपका ऑफिस है, तो आपके ऑफिस में आपने एसी लगा के रखा है, बराबर ना, एसी। आप एक बार एसी परचेज, 2-3 साल तो टेंशन नहीं, कम से कम 3-4 साल, 5-6 साल, आपने, वो फिक्स एसेट है आपकी, बिकॉज आपने जो परचेज किया वो क्लाइंट को दोगे, जा भाई लेके जा, नहीं, वो हमारा है, हमारे यूज के लिए। इट इज योर थिंग विच यू ओन, इट इज योर एसेट एंड इट इज फिक्स्ड इन द नेचर, वो डेली चेंज नहीं होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंप्यूटर्स, आपके ऑफिस में स्टाफ के लिए कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, आपके खुद के पास लैपटॉप है, आपने एक ऑफिस परचेस किया है, बिल्डिंग परचेस की है, दे आर फिक्स्ड इन द नेचर। एक बार परचेस किए तो जनरली वो वैसे ही रहेंगे, चेंजेस नहीं आएंगे उनमें। एंड दूसरा होता है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेली चेंज होता है, डेली चेंज होता है। कैश, कोई कस्टमर्स आपको पेमेंट करेंगे, एग्जांपल आपका, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल आपका मोबाइल शॉप है, हर कोई मोबाइल शॉप में गया है, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। या बुक स्टोर है आपका, यू हैव बुक स्टोर, चलो मोबाइल शॉप पे मैंने गए, बुक स्टोर में तो हर कोई बंदा जाता है, बुक स्टोर है, तो होता क्या है कि यू परचेज द बुक्स, यू सेल द बुक्स, परचेज द बुक्स, सेल द बुक्स, परचेज द बुक्स, सेल द बुक्स। गुड्स इज असेट, गुड्स इज द असेट। डेली नए बुक्स आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, चेंज हो रहे, दे आर करंट असेट, जो डेली चेंज होंगे, फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे, करंट असेट्स। असेट्स है यस, और फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, करंट असेट। कैश बैलेंस, गले में कैश आ रही जा रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही, डेली बैलेंस चेंज हो रहा है, करंट असेट। बैंक बैलेंस, बैंक में पैसे आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, डेली चेंज होता है, डेली फ्लक्चुएट होता है, करंट असेट। जो असेट जो डेली फ्लक्चुएट हो गए, डेली मींस फ्रीक्वेंटली, डोंट वर्ड यूज द वर्ड डेली, एक्चुअल वर्ड इज रिकरिंग, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिकर, राइट, ऑकर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, रिकर, रिकरिंग, जो फ्रीक्वेंटली चेंज होगी, दे आर करंट असेट्स, दे आर करंट असेट्स। इन, राइट, डेटर्स, डेटर्स, डेली हम क्रेडिट पे सेल करेंगे, कोई हमें पे करेंगे, क्रेडिट पे सेल करेंगे, पे करेंगे, डेटर्स डेली चेंज होते रहेंगे। आज नए डेटर्स बने, कोई लोगों ने पेड किया, कम हो गए, फिर नए डेटर्स बने, पेड हुआ, नए डेटर्स, डेली चेंज होता रहेगा, बिकॉज कस्टमर्स डेली आएंगे, किसी को कैश में सेल करेंगे, किसी को क्रेडिट पे सेल करेंगे, जिनको क्रेडिट पे सेल किया है वो डेटर्स बन गए, उनमें से थोड़े पे करेंगे, ऐसे कम ज्यादा होता रहेगा। डेटर्स कीप्स ऑन changing on the daily basis frequently, therefore debtors are current asset because it's my right to receive the money, it's an asset and it keeps on fluctuating on daily basis and therefore that is called as current asset. Fixed asset, एक बार एसी लगा दिया तो 4-5 साल टेंशन नहीं, मशीनरी डाल दी 4-5 साल टेंशन नहीं, कंप्यूटर ले लिया 4-5 साल देखना नहीं, लैपटॉप ले लिया 4-5 साल देखना नहीं, समझ, बिल्डिंग ले ली 4-5 साल देखना नहीं, लैंड ले ली 4-5 साल देखना नहीं, बट कैश बैलेंस डेली चेंज होगा, बैंक बैलेंस डेली चेंज होगा,
डेटर्स डेली चेंज होंगे, दे आर करंट असेट, द असेट्स विच चेंजेस ऑन डेली बेसिस. एंड इन्वेस्टमेंट्स डिपेंड्स, कोई इन्वेस्टमेंट डेली चेंज होती है, लाइक शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो वो डेली चेंज होते हैं, आप डेली परचेस करोगे, डेली सेल करोगे. यू परचेस रिलायंस शेयर, यू सेल रिलायंस शेयर, परचेस सेल डेली. समझ में आ रहा है? अगर ऐसे है तो वो है, अब देख ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. अब अच्छा एग्जांपल आ गया. इन्वेस्टमेंट्स कैन बी करंट और फिक्स्ड. अनिल अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आई विल शो यू. एक सेकंड, क्यों रुकना है, मेरे पास है, आई कैन शो यू. शेयर होल्डिंग ऑफ रिलायंस. वो स्पेलिंग ऑटो करेक्ट लेगा, टेंशन नहीं. हाँ देखो यहां पे ध्यान देना, शेयर होल्डिंग है मतलब कौन कितना ओनर है, कौन कितना ओनर है रिलायंस का. प्रमोटर्स, हु आर द प्रमोटर्स? अंबानीज. दे होल्ड 49.15% ओनरशिप. अंबानीज के पास 49.15% ओनरशिप है. फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लाइक फेसबुक हैज इन्वेस्टेड इन रिलायंस. आपने सुना होगा अभी रिसेंटली, फेसबुक हैज इन्वेस्टेड इन रिलायंस, रिलायंस हैज इन्वेस्टेड इन द फेसबुक. सो फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है. दे हैव परचेज द शेयर्स. उनके पास 20, सपोज एक ही नहीं होगा, बहुत सारे रहेंगे, 24% फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास ओनरशिप है. फॉरेनर्स इंस्टीट्यूट, फॉरेन इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कंपनीज, देन या बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स, राइट. बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, 5% shares are purchased by the various banks. एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उनके पास जो पैसा आता है दे इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ रिलायंस सपोज. तो उनके पास ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड से कितने सारे म्यूचुअल फंड है, सही है, आपने ऐड देखी होगी. दे हैव इन्वेस्टेड 5%. सेंट्रल गवर्नमेंट की खाली 0.2% इन्वेस्टमेंट है. अदर्स 2.49%. जनरल पब्लिक हमारे जैसे छोटे मोटे शेयर्स परचेस करते हैं 8.34%, राइट. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 7.98%. जीडीआर, ये जीडीआर कंसेप्ट अभी आपको समझ में, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स अभी नहीं समझ में आ जाएगी. कोई डोनाल्ड ट्रम्प को इन्वेस्ट करना है, फॉरेनर है, उसको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो उसको जीडीआर के थ्रू करना होता है. नॉन रेसिडेंट इंडियंस को अगर इन्वेस्ट करना है, फॉरेनर्स को इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो उनको जीडीआर के थ्रू करना होता है. ठीक है, आगे. सो ध्यान देना, ये जो 100% ओनरशिप है, 49% ओनरशिप किसके पास है, किसके पास है? अंबानी के पास है. दे हैव परचेज्ड द शेयर्स ऑफ रिलायंस, देन ओनली दे कैन बिकम द ओनर. सो दे हैव परचेज्ड 49% शेयर्स. डू यू थिंक दे सेल ऑन डेली बेसिस? नो, दे नेवर सेल इट. अगर वो सेल करेंगे तो उनकी ओनरशिप चली जाएगी. एंड आप देख रहे हो कि जैसे रिलायंस के शेयर्स इंक्रीज होते हैं, अंबानी वेल्दी पर्सन बन जाता है. जैसे शेयर्स डिक्रीज हो गए, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले रिलायंस के शेयर डिक्रीज हुए थे. अंबानी वेल्थ, न्यूज, न्यूज देखते हैं, न्यूज. जैसे रिलायंस, बिकॉज उनके पास रिलायंस के 14% शेयर्स है, मतलब अगर एग्जांपल मेरे पास एक शेयर है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, डोंट लीव द मीटिंग. ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. मेरे पास एक शेयर रिलायंस का और उसकी वैल्यू 1500 है, तो मैं 1500 का ओनर हूं. इफ आई सेल आई विल गेट 1500. मेरे पास 2 शेयर्स है, 3000 का ओनर हूं. 10 शेयर है, 15000 का ओनर हूं मैं. ऑब्वियसली मैंने परचेस किए होंगे. ठीक है, अब ध्यान देना, अगर वो शेयर मैंने परचेस किया था 1000 पे, मैंने पेमेंट किया था 1000 का, आज वो 1500 है, तो मेरे 1500 की एसेट है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1500 है. कल वो 2000 हो जाती है एक शेयर की वैल्यू, तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई, 2000. सो जैसे शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, यू विल बिकम वेल्दी. शेयर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, इफ यू इन्वेस्टेड देन ओनली यू विल बिकम पुअर.
तो जैसे रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू ऊपर जाती है, अंबानी इज बिकम रिचर एंड रिचर एंड रिचर. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला पढ़ो. सेकंड, द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, ये वाला, ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज वर्ल्ड्स फोर्थ रिचेस्ट पर्सन, राइट, ऑन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स. वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो निकालते हैं a daily ranking of the richest people, right? After gaining a whopping USD 22 billion this year, he falls behind Silicon Valley's tech, right? वो जो बिल गेट्स एंड मार्क जुबरबर्ग इज ओनर ऑफ द फेसबुक, all of whose net worth is over $100 billion. Then Asia's richest man Ambani has raced ahead of Google co-founders, right? वो नाम दिए, and ace investor Warren Buffett, right? And Musk among the others to enter the top 5 of the Bloomberg index. ये क्यों हुआ है उसका रीजन दिया होगा, देखो. The phenomenal jump in the Ambani's wealth is driven by the continual rise in the Reliance Industries Limited shares since its March low price of 875. मार्च में उसकी प्राइस एक शेयर की 875 थी. टुडे इट इज अराउंड 1200. 400 रुपए का शेयर इंक्रीज है, ठीक है, शोज ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स, ठीक है. इवन एज ऑयल डिमांड रिमेन्ड लो ड्यू टू द कोविड-19 क्राइसिस, हिज दिस रैली वाज मेनली फ्यूल्ड बाय ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेट. ये आपको नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है. देखो यहाँ पे देखो, ये अभी मैं बोल रहा था, ऑन 19 जून अंबानी डिक्लेयर्ड Reliance Industries Limited a net debt-free company after raising combined capital of rupees 1.75 lakh crores from the global investors and through its right issue. वो right issue वगैरह नहीं समझेगा, यहाँ पे फेसबुक वगैरह कुछ तो लिखा था उन्होंने, शायद से नहीं है क्या? ओके. सो जो शेयर मार्च में 875 का था, जो शेयर मार्च में 875 का था, अभी रिसेंटली वो ऑलमोस्ट 1200 था. एक शेयर की वैल्यू 400 रुपए इंक्रीज हो गया. ऐसे अंबानी के पास कितने शेयर्स होंगे, कितने शेयर्स होंगे, देखो ना. प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं, ये वैल्यू है कुछ तो 3, ये वैल्यू दिख रही है आपको, इतने शेयर्स हैं एंड उस पे मल्टीप्लाई बाय 400 करो, उतने से उसकी गेन है, उसका प्रॉफिट है खाली, एंड मल्टीप्लाई बाय 1200 करो, दैट इज द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन द रिलायंस. सोच भी नहीं सकते. सो अब ये जो अंबानी ने इन्वेस्ट किया है, वो क्या सेल करने के लिए नहीं किया है, वो सालों साल उनकी इन्वेस्टमेंट है. दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट फिक्स्ड असेट टाइप. एंड मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ वो डेली बेसिस पे मैं कम ज्यादा करता हूँ, परचेस करता हूँ, सेल करता हूँ. इट इज अ करंट असेट फॉर मी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सो ये है समझना. सो अब अंबानी ने जो रिलायंस में इन्वेस्ट की है वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, बराबर, वो असेट है उनकी. रिलायंस का शेयर इंक्रीज होगा, वो रीच होंगे, इट इज असेट. वो जो है, राइट, वो जो है, वो जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सालों साल के लिए, एक दिन के लिए नहीं है. इट विल कंटिन्यू फॉर इयर्स आफ्टर इयर्स आफ्टर इयर्स, ठीक है. सो and therefore his investment in the Reliance is the long term in the nature, उसको हम फिक्स एसेट की तरह देखते हैं. बट जो ट्रेडर्स होते हैं, जो परचेस सेल करते हैं, उनको रिलायंस वो डेली परचेस करेंगे, डेली सेल करेंगे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करंट एसेट रहेगी. सो मैंने बोला 12 मंथ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट. अगर 12 मंथ से कम के लिए इन्वेस्टमेंट है, आपने परचेस किया है और आप 12 मंथ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हो, तो फिक्स एसेट, नहीं तो करंट एसेट. आई डोंट नो, ये आईपैड डजंट सपोर्ट, टू बी वेरी फ्रैंक. इस वेबसाइट के लिए ना वो बहुत प्रॉब्लम देता है कि आईओएस को इतनी सपोर्ट नहीं करती. आई डोंट नो व्हाई. रिलायंस ना, अरे रिलायंस स्टील आ गया.
नहीं हो रहा है, आई एम ट्राइंग, ओके लेट्स सी। नहीं, ये न्यूज आ गई, जस्ट अ सेकंड, एंड देन ये दिखाऊंगा और आई विल एंड। सो करंट एसेट, मैंने बोला assets are the resources owned and controlled by the enterprise giving future economic benefit. They are your rights, they are your properties, and they can be fixed or current. Fixed मतलब for more than 12 months, आपने पैसे डाल के रखे for more than 12 months, ठीक है। किधर गया यार, यहाँ पे दिखाऊंगा जितना दिखता है आप, ठीक है। वो जूम नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लैपटॉप पे अच्छे से होता है। रिलायंस, रिलायंस ये आ जाता है, हाँ देखो अभी क्या प्राइस चल रही है, इधर देखो, इधर ब्लू में देखेगी, ब्लू में अभी कितनी प्राइस चल रही है, 2090, एक शेयर की वैल्यू 2090 है। चलो मार्च में जाके देखते हैं, मार्च में जाके देखते हैं। लेट मी शो यू, दिस इज, मैं वन डे की कैंडल लेता हूं, ठीक है, वन डे सिलेक्ट किया देखो, और हम मार्च में चलते हैं, ठीक है। मार्च, यहाँ पे गो टू रहता है, मार्च, मार्च, जुलाई, मार्च, देखो मार्च में, एक सेकंड, मार्च में क्या प्राइस थी, 8, इधर देखो इस साइड पे, ठीक है। मैंने मार्च के यहाँ पे डेट दिखे, नीचे डेट दिख रही है देखो, डेट दिख, इसके नीचे डेट दिखेगी 23 मार्च दिख रही है, 23 मार्च, यस देखो 23 मार्च, ठीक है। देखो यहाँ पे 23 मार्च मतलब मार्च की कैंडल है, कोई भी क्लिक किया, और इस साइड वैल्यू दिखेगी 891। मार्च में एक शेयर 891 का था, मार्च में सपोज, आज कितने का हुआ है वो शेयर, एक सेकंड, आज 2000 का है ना। अगर मार्च में आपने शेयर लिया होता 800 में, आज उसकी वैल्यू कितनी हो जाती, आज देखो इधर वैल्यू है 2080, 89, 800, 900 में शेयर ले लिया और 2800 में 2000 में सेल किया, सपोज 88 ऊपर का जाने दो, 2000 माइनस 900, 1100 का प्रॉफिट होता आपका। मार्च एंड का बोल रहा हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ्स में 1100 का प्रॉफिट ऑन ए इन्वेस्टमेंट ऑफ 900, 900 पे 1100 का प्रॉफिट, डब 100% से ज्यादा प्रॉफिट है, डबल हुआ है पैसा, डबल। 900 डालो आप, 900 रुपए डाले होते हैं तो 2088 रुपए मिलते हैं आपको, डबल से भी ज्यादा हुआ है, 2088 डिवाइडेड बाय 900, 2.32 टाइम्स हुआ है, और कितने मंथ्स में, जस्ट 5 मंथ्स में। बट ऑब्वियसली यू मस्ट हैव नॉलेज, ये ऐसे तुक्केबाजी पे नहीं चलता है, इट इज ए नॉलेज। सो जिसने मार्च में 800 900 पे एक शेयर लिया, आज वही उसकी प्राइस है 2088, और इतने बुरे दिन में भी ये स्टॉक इतना अच्छा चला। कितने बुरे दिन थे, 4-5 मंथ, उसमें ये स्टॉक ऊपर गया, मतलब ये ट्रू कंपनी है, परफेक्ट। दूसरी कंपनी आईटीसी, इंडिया में फूकने वाले और पीने वाले कभी कम नहीं होंगे, कितना भी लॉकडाउन लगे। आईटीसी की मजा देखो, टोबैको कंपनी, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो यहाँ पे वो पूरा झूम होना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, कम ही नहीं होता है वो। आप बोलेगा सर 200 का शेयर है, बट उनके लिए 200 इज बिग वैल्यू, ठीक है। सो कभी कम नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूं। सो ठीक है, एक्सटेंड हुआ बहुत, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो सो क्या बोल रहा हूं, अगर इन्वेस्टमेंट्स आर मोर देन 12 मंथ्स, इफ यू इन्वेस्टेड समवेयर, आपने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया एंड यू इन्वेस्टेड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, उस इन्वेस्टमेंट को
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट असेट या फिक्स असेट बोला जाएगा। अगर आपने 12 मंथ से कम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, आपका टारगेट 12 मंथ से कम इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको करंट असेट बोलो। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? ओके, थैंक यू।